So let me just start now. So we're live today at Autism Resource Group Pakistan. We are going to talk about speech and language development in children, and this is a topic that is very close to my heart. I've been working on this for a long time, along with other areas. Just to give you a little bit of background of who I am, my name is Fariha Mujahid. I am director at Sprout Resource Center. I work with a team of professionals, SLPs and other professionals, and we work with children of all age groups. I am certified in humanistic counseling, and I'm currently training for a diploma in integrative psychotherapy from CPCAB UK. So when Alina first approached me, who's the admin of this group, when she first approached me with this topic, we discussed it a little bit because it's such a wide thing. It's such a wide topic. There's so many things that we can talk about. There's so many things that influence speech and language development in children that it was a little hard to make it precise and concise in a few things. But I'm going to try to keep it very precise and easy to understand. Some parents requested that they wanted the session to be in English, but अगर आप लोगों को problem हो रही है, and you want me to talk about it in Urdu, you can just let me know, and I will try कि मैं इसको easiest तरीन language में convey करूँ आपको. So first of all, when we talk about speech delays, there's a lot of misconceptions, and there are a lot of cultural contexts that come in. What I'm going to do today is मैं आपको एक general overview दूंगी of what typical speech and language development looks like, and then what you can do is कि आप उसको अपने बच्चों के प्रोग्रेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं. यू कैन सी कि क्या चीज़ों में डिलेज हैं, डेफिसिट्स हैं, एंड दैट विल गिव यू होपफुली जनरली एन आइडिया ऑफ व्हाट do you have to work on with your child next. तो अगर आप ऑलरेडी थेरेपी पे जा रहे हैं या अगर आप नहीं जा रहे, अगर आपको अभी स्पीच डिले सस्पेक्ट कर रहे हैं, आई एम होपिंग हमारा सेशन आज आपको उसके लिए हेल्प करेगा. सो सबसे पहली चीज़ ये है कि हाउ डू यू नो if there's a speech delay or if there's a speech delay due to other reason, comorbid conditions. The first thing that you should do if you suspect that there is a speech or language delay in your child is what I would recommend is to get a hearing test done. बहुत सारे बच्चों के hearing tests होते हैं at birth, and a lot of parents say कि हमारे बच्चे का hearing test हो गया था and their hearing was fine. But sometimes ऐसा होता है कि because of some ear infections or some other hereditary issues, some genetic conditions, कोई ना कोई hearing का issue हो सकता है that you think is actually the child not speaking, but they are not able to hear things. So they will hear you. आपको ये लगेगा कि जब आप बुलाते हैं तो बच्चा respond करता है, आपको देखता है, but they are not able to listen to certain frequencies of sounds. And it's important for you to get that tested first, get that assessed first. तो अगर आपका बच्चा 2 years के एज ग्रुप में आ गया है जहाँ पे लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है और आपके बच्चे की नहीं हो रही, तो what you can do is you can get a hearing test first और देखें कि कोई ear infections, कोई genetic reasons, कोई इस तरह की reasons तो नहीं है. को check that with your doctor. Once you've done that and you're sure कि कोई hearing issues नहीं है, कोई इस तरह के problems नहीं है, and still speech is not developing, it's actually better if you get your child assessed from a professional and not wait. I've seen a lot of people recently suggesting to each other कि just wait it out and the child will develop speech and it's fine, सब बच्चों के साथ होता है, it doesn't matter, मेरा बच्चा भी नहीं बोल रहा था और फिर ये हुआ और ये हुआ, which is good, which is great. It's great कि उनके बच्चे ने catch up कर लिया, but at times ये होता है कि in that process you miss out on the first few initial years. The first 3 to 5 years of life are really important in achieving so many milestones. और जब आप उनको क्रॉस कर जाते हैं तो वही चीज़ जो आपको मे बी पहले सिखाने में वीक्स लगने थे, वही चीज़ आपको दोबारा आगे जाके सिखाने में मंथ्स लग सकते हैं. So do not waste the precious time that you have in thinking कि अच्छा खुद ही डेवलप हो जाएगा. There's no harm in therapy. It's very stigmatized. Yes, लोग नहीं इतना जाना चाहते, but it's good that you go early because that also means that you may not have to go in the long term.
So do go and get your child assessed. अब typical development के बारे में let's talk about that a little bit. And how do you recognize that there is a delay? So how you can recognize is that typically speaking, a child by 12 months should be communicating to you in the form of gestures and some kind of pointing. If your child is around the age of 18 months or 2 years, more or less, that is the time जिस time पे बच्चे थोड़े से vocals यूज़ करते हैं to communicate, and they would be able to ask you simple verbal requests, stuff like that. They'll be able to imitate your speech a little bit, so the words that you'll say, they'll be able to imitate that. But ये है कि अगर if your child does not have any spontaneous speech by the age of 2 years, and by spontaneous speech or by spontaneous words or actions, what I mean is कि उनके कोई words या phrases नहीं आते, तो you need to worry at that point, and you need to go and get professional help at this point. You don't have to wait until they are 3 years old. That is not very recommended, and that is also not useful for the child. Around 2 years, अगर आपका बच्चा सिंपल डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहा और आपको ये फील हो रहा है कि जो स्पीच वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, देयर वॉइस इज़ अ लिटिल रैस्पी एंड they are not able to imitate your speech, they're not able to imitate what words you say, they're not even attempting it. Clarity doesn't matter at this point, but अगर वो आपकी simple verbal requests को follow नहीं कर रहे, आपकी sounds को imitate नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे, तो these are some of the red flags that you need to see. And if you notice these things, then please go and get your child assessed properly with a professional who will have the right assessment tools to assess. So अपनी research ज़रूर करें and go to whoever is available in your area. Now, what another thing that you can look for is that by 18 months to 2 years का जो time frame होता है, उसी में your child should be able to say around 50 words. So if they are not able to speak 50 words, then that in itself is also an indication of a delay. इसके लिए आप ये कर सकते हैं, just जो भी sounds या words आपका बच्चा बोल रहा है, make a list of all the sounds and all the words that they utter. चाहे वो nonsensical words हैं, चाहे वो meaningful words हैं, चाहे वो sounds हैं, उनकी एक list बना लें. क्यों, ये मैं आपको भी बताती हूँ थोड़ी देर में. What you're going to do with that list is that list will tell you कि कौन कौन से ऐसे sounds, speech sounds हैं जो आपके बच्चे के develop हो गए हैं, and then you can help them improve based on those sounds that they are verbalizing. ठीक है? Okay, so and we're going to come to that in a bit, but पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ about oral motor issues. A lot of times आपने hearing assess कराई, there is no issue. आपने बाकी सारे areas assess किए, there is no issue. Please also get oral motor impairments assessed, because sometimes ऐसा होता है कि there's a tongue tie or there's some problems in the palate, and or the frenulum is short, which is basically the fold between your tongue. वो short होता है, वो tongue की movement को limit करता है, and that also causes speech delay. ये सारे इस तरह के medical reasons हैं which can result in a speech delay. So अगर आप सीधे direct speech therapy पे चले जाएंगे and you won't get these things assessed, that is also going to affect your child's progress, because apparently आप काम कर रहे होंगे, but you won't see a lot of results. So it's better कि आप ये सारे areas assess करा लें. Now once you've done all that, let's say आपने hearing test करा ली, आपने oral motor issues check करा लिया, you know that there's no such thing like that. And I'm not talking about autism right now, I'm just talking about speech delay, that's it, speech or language delay. आपने सारी चीज़ें assess करा ली हैं, and you know that you get this assessment कि there is a speech delay or your child is autistic and they are not following the typical pattern of speech and language development, then what you have to do. So what happens is कि a lot of parents who come to us as well, they say stuff like, oh, हम 3 महीने से speech therapy पे जा रहे हैं, but there are no words yet. या हम अभी speech therapy पे नहीं गए, but we've been working for so long and we haven't seen any progress. So I'm just going to give you a little background as to why you don't see that progress. It's because
अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी इस तरह से बनाई है कि ऑल आर सिस्टम्स आर connected with each other, they're all integrated with each other. So क्या होता है कि if you're working on speech sounds only and your child cannot imitate actions right now, they are not going to develop much in terms of speech. Why? Because जब आप कोई speech sound कराते हैं, so let's say you sing, okay, can you say b, you are essentially asking them to repeat and imitate you. अगर उनके इमिटेशन स्किल्स डेवलप नहीं है, जो कि हमें पता है कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर इमिटेशन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती. सो अगर आप इमिटेशन के ऊपर काम नहीं करें तो स्पीच इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव आइदर. It's like a foundational pyramid. It's like, think of it as an integrated system of many different areas working together to form that foundation जिसके ऊपर speech आएगी. So सबसे पहले what you need to do is you need to develop attention and listening skills in your child. And I'm just going to go over them बहुत short form में ताकि आप उसको compare कर लें अपने बच्चे के साथ. So you need to develop attention and listening skills. You can do so many different activities, targets. अगर आपका बच्चा भी let's say assuming कोई बच्चा है जो hyperactive है, he's not sitting yet. So what you can do is start with 30 seconds and then keep on increasing the time. So make them sit for 30 seconds, do something with them, praise them and say, oh great, you did that, now break time, and then let them go. And then build up on that time. फिर आहिस्ता आहिस्ता time बढ़ाते जाएं. Take it to 5 minutes, 10 minutes, however long you think your child can sit. Take a baseline. Your therapists will be able to help you with this. Listening is again an area that is very, very, very ignored. और बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं. सो हेयरिंग इज़ डिफरेंट देन लिसनिंग. योर चाइल्ड मे बी हेयरिंग बट दे आर नॉट एक्टिवली एबल टू लिसन टू वॉट यूर सेइंग. एंड लिसनिंग इन्वॉल्व्स दिस होल प्रोसेस ऑफ कि आप कुछ कह रहे हो और बच्चा आपकी बात को प्रोसेस कर रहा है, फिर उसको रिटेन कर रहा है और फिर आपको रिस्पॉन्ड करता है जो भी आप चीज़ कहते हैं. अगर आपका बच्चा आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर रहा और रिटेन ही नहीं कर रहा, तो वो कभी भी आपको स्पीच की फॉर्म में या कम्युनिकेशन की फॉर्म में रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि आप एक बीच में से स्टेप मिस कर रहे हैं. इट्स लाइक एक सीढ़ी है जो आपने मिस कर दिया. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डेवलप एक्टिव लिसनिंग. और वो आप कैसे कर सकते हैं? Again, there are so many activities and we have very short time and a very big topic, so I'm not going to go in detail. But अगर आप कुछ research करना चाहते हैं अपने लिए तो do research information carrying words, and that will give you a lot of stuff for developing listening skills in children. There are also lots and lots and lots of resources on internet now. आप वो भी देख सकते हैं listening skills develop करने के लिए. ये साथ साथ develop होते हैं. Other than attention and listening, play skills. So symbolic play, imaginative play, pretend play, parallel play, जिसमें बच्चे साथ साथ बैठ के प्ले कर रहे होते हैं, बट वो एक बच्चा अपना प्ले कर रहा है, एक बच्चा अपना कर रहा है. एंड दीज आर ऑल बिग बिग टॉपिक्स, सो आई एम जस्ट रशिंग थ्रू दैम बिकॉज आई वांट कि मैं आपसे स्पीच और लैंग्वेज की ज़्यादा बात करूँ और दूसरे एरियाज़ की इतनी ना करूँ. सो प्ले स्किल्स, यू नीड टू वर्क ऑन प्ले स्किल्स, यू नीड टू वर्क ऑन attention and listening, you need to work on imitation, and all of these areas and foundational skills will help you develop language. और जब language आएगी, मीनिंग रिसेप्टिव लैंग्वेज आएगी, तो उससे फिर आपकी स्पीच और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी. एंड हाउ कैन यू डेवलप रिसेप्टिव लैंग्वेज इन योर चाइल्ड? नाउ आई एम नॉट गिविंग यू मैनी एजेस बिकॉज टिपिकल डेवलपमेंट में तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं इन द फर्स्ट 5 years और सो. बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं उनकी ऑलरेडी डेवलपमेंट बहुत डिलेड होती है. सो एंड सिंस दिस इज़ एन ऑटिज्म फोकस्ड ग्रुप, सो आई डोंट वांट टू गिव यू एन एज कि आप ये करें. इट डज टेक टाइम समटाइम्स, बट इट कैन एक्चुअली हैपन. डू नॉट लिसन टू पीपल जो आपको ये कहते हैं कि ओ अब इतनी एज होगी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. हाँ, मे बी टाइम ज़्यादा लगेगा, बट बच्चे रिजिलियंट होते हैं और वो कैचअप कर लेते हैं. एंड दे वांट टू प्लीज़ यू एंड दे वांट टू डू थिंग्स that make you happy. So they will try their best, so please don't give up. Okay, so how can you develop receptive language? And I'll just point you out to a few resources. एक तो information carrying words. They are very important in developing active listening skills. They help you retain information. So information carrying words के ऊपर आपको बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर information मिल जाएगी. It's more like जैसे keywords होते हैं,
जब आप अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग सिखा रहे हैं लेट्स से, तो अगर आपने उनको कहा है कि ओ जाओ, कैन यू गेट मी, मुझे पानी ला दो टेबल से, सो अगर आपका बच्चा सिर्फ पानी सुन रहा है और रिटेन कर सक रहा है, तो दे विल अंडरस्टैंड कि मामा ने पानी मांगा है, एंड दे विल गो एंड गेट यू वाटर. उनको आपको पूरा सेंटेंस सुनने की जरूरत नहीं है. सो दैट मीन्स दे आर एबल टू रिटेन वन कीवर्ड लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन विच वी ऑल्सो ट्रांसलेट इन टू कि वो बच्चा, मेरा बच्चा वन स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेता है. एंड देन यू बिल्ड अप ऑन दैट, और फिर आहिस्ता 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 करके आप उसको बढ़ाना शुरू कर दें. सो मे बी आप टेबल पे 2 चीज़ें रख दें एंड देन यू कैन टेल दैम कि कैन यू गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. सो यू कैन कीप वर्किंग ऑन दैट इन दैट वे. वो बहुत हेल्पफुल होता है. देन अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप अपने बच्चों को बहुत सारे WH क्वेश्चंस दें. सो लेट्स से आपका बच्चा उस लेवल पे है कि जहाँ पे उसको पता है, उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो गई है. आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स को वोकैबुलरी और उसकी इंपॉर्टेंस का पता होगा. सो आप वोकैबुलरी पे कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं. आप कॉन्स्टेंटली बच्चों को वोकैबुलरी दे रहे हैं कि ओ यू नो ये इस चीज़ को ये कहते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड लेबलिंग. आपका बच्चा अगर सारा कुछ लेबल करना शुरू हो गया एंड अब यू आर थिंकिंग कि ओ ओके, तो मैंने बेसिक सारी वोकैबुलरी बहुत सारी काम कर लिया है, व्हाट टू डू नेक्स्ट. व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट is that you teach them the function of those objects, and this is something which is also in a model which is called the blank level. You can research for that also. आपको इंटरनेट पे बहुत सारे blank levels के मिल जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स, एंड यू कैन रीड थ्रू दैट. वो एज के साथ लिखे होते हैं एंड देन यू कैन फॉलो दैट विद योर चिल्ड्रन एट होम. सो देन यू टीच दैम कि इस किसी चीज़ का फंक्शन क्या. सो लेट्स से इफ देयर इज अ ग्लास, व्हाट डू वी डू विद द ग्लास, और you put 2 things in front of them and you ask them which one do we drink with, and they will tell you that we drink with a glass. That's the next thing that you can do. And then you keep building on those WH questions. So you can ask them which, like which one do we eat with, which one do we read, anything like that. And then you go on, you ask them what questions, and then you ask them when questions, where questions, you ask them all of these. ये फिर step by step उस blank level में आते रहते हैं. And of course different बच्चे different level पे होते हैं. So मैं आपको सिर्फ एक general overview दे रही हूँ. Of course you have to develop vocabulary alongside. That is the most important thing. अगर आप vocabulary के ऊपर actively काम नहीं कर रहे, अगर आप अपने बच्चे को vocabulary नहीं सिखा रहे, तो फिर you cannot really expect कि स्पीच डेवलप होगी. और वोकैबुलरी समथिंग, उसको यूँ समझें कि जैसे थ्रू आउट लाइफ वो चलती रहती है. इवन स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनके साथ यू विल सी दैट दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन वोकैबुलरी, एंड यू हैव टू डू द सेम. द ओनली डिफरेंस इज कि आपका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा. अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और अगर सिर्फ स्पीच डिले है, तो इट डजंट हैव टू बी दैट वे, बट it always works well with children to use visual resources. Another very important thing that people miss is teaching children about sequences. So what happens is that information अगर आप दे रहे हैं but it is very it's not that organized, that can have an impact. So information अगर आपने दे दी बहुत सारी, let's say आपने बहुत सारी vocabulary सिखा दी है, now you're not teaching any categories. So उस information को का इतना overload होगा, there's no way to categorize, to associate it with different things. So if you're teaching animals, maybe you can teach them to categorize animals separately and food separately and then go into subcategories. ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप vocabulary develop कर चुके होंगे, what to do next with that. So keep going into, okay, so if we've done food, let's say, so food has different categories. So there's fruits and vegetables and desserts and all of these things. And then you teach your child to categorize. You teach them to sort. You teach them classification, different categories. How that is going to help you is that it's going to help your children organize all this information and all this vocabulary that they're getting. So, and then you categorize that into different sequences as well. And sequencing can be done in various ways. Easiest way to start is to start with maybe colors or shapes. So you go in one sequence, so you go red, yellow, red, yellow, red, yellow, or you go circle, square, and then you keep increasing that pattern. फिर आप 3-step pattern पे जा सकते हैं, आप 4-step pattern पे जा सकते हैं, and then you keep increasing the level of complexity, and that is going to help your child develop those neural pathways to understand how information is organized, और वो उनको help करेगा into translating into words.
बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो आपको अभी प्रॉबली लग रही होंगी कि दे आर नॉट वेरी रिलेटेड, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ दे आर रिलेटेड. So coming to speech, these are all the areas that you're working on, right? You're working on language, you're working on imitation, you're working on attention and listening, you're working on play. वो translate कैसे होता है speech में? जब आप speech के ऊपर काम शुरू करते हैं, remember I told you a while ago to make a list. उस list का use मैं आपको भी बताती हूँ. जब आप एक लिस्ट बनाएंगे, लेट्स से आपका बच्चा 20 साउंड्स निकालता है डिफरेंट, सो दिस मे बी वो आ बोलेगा या ई बोलेगा, या मे बी आपका बच्चा बाबा बोलता है, सो दैट इन इट सेल्फ, और मामा बोलता है. सो अब आपके पास कितनी साउंड्स आ गई हैं? आपके पास आ ई ब आ गया. सो व्हाट यू डू नाउ इज आप इन साउंड्स को आइसोलेशन में सिखाएं. सबसे पहले स्पीच में आप आइसोलेशन में सिखाएं. एंड रिमेंबर ओरल मोटर एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग द टंग, स्ट्रेंथनिंग द जॉ मसल्स, फेशियल मसल एक्सरसाइजेज जो SLPs कराते हैं, आपके SLP भी कराते होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो कंटिन्यूड हैं थ्रू आउट. लैंग्वेज कंटिन्यूड है, वोकैबुलरी चलती जा रही है, और अब आप साथ साथ स्पीच पे काम कर रहे हैं. सो यू टीच देम आइसोलेटेड साउंड्स. सो यू से you can start with vowels. What you can do is कोई चीज़ गिर गई या कोई चीज़ गिरा दें, या एक ब्लॉक्स बनाएं और कुछ गिरा दें, एंड देन सडनली गो लाइक ओ, ठीक है, एंड देन रिपीट दैट. दोबारा बनाएं, दोबारा गिरा दें, दोबारा कोई चीज़ गिरा दें, से ओ. और मे बी इफ यू गोइंग ऑन अ स्लाइड यू कैन से वी. And keep doing that. Do that like 100 times a day, because repetition speech develop करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है. According to research, एक बच्चे को like any child needs to hear a sound 50 times before they associate it in their brain to understand कि इस चीज़ को ये कहते हैं, to make that connection, right? So you have to repeat it multiple times. आप ये नहीं कह सकते मैंने हफ्ते से मैं ये चीज़ करा रही हूँ बट ये नहीं आ रही. आई नो कंसिस्टेंसी मुश्किल होती है, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है. सो टू कीप डूइंग दैट, कीप हैव दो साउंड. सो आप वावल्स कर सकते हैं. यू कैन डू आ. सो लेट्स से अगर आप कुछ खिला रहे हैं, सो अगर आप खाना खिला रहे हैं तो हर स्पून फुल पे यू कैन से आ, एंड देन यू कैन गिव दैट. और यू कैन डू ई, ऊ, ओ. यू कैन डू ऑल दीज साउंड्स इन आइसोलेशन. सबसे पहले ये कराएं. अब लेट्स से आपका बच्चा बैबल कर रहा है, और प्लीज़ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि मैं आपको उस एग्जांपल से बता दूँ. सो लेट्स से आपका बच्चा थोड़ा बहुत बैबल कर रहा है. नाउ यू वांट टू टेक दैट इनटू वर्ड्स. सो व्हाट यू डू इज़ आप अपनी वर्ड लिस्ट लें, और हर वो साउंड जो डेवलप हो चुकी है उस साउंड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आप करवाना सिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे ने ब बोलना शुरू कर दिया और वो आ भी बोल लेते हैं, तो मे बी वॉट यू कैन डू इज मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जिनमें वो साउंड्स यूज होती हैं, जैसे बाबा. एंड एवरी टाइम दे सी बाबा और अ पिक्चर ऑफ बाबा, यू से बाबा, एंड यू कैन पुट योर फिंगर हियर, ताकि उनका फोकस आपके मुंह के पास आ जाए. अगर आप कोई फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको अपने मुंह के साथ रखें ताकि वो आपका मुंह देख सकें. दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोग्राम कॉल्ड जेमिनाई, वो भी यही टेक्निक यूज़ करता है. दैट्स ऑल्सो फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. सो डू दैट. और फिर साउंड्स करें आइसोलेशन में. सो कॉन्सोनेंट्स करें आइसोलेशन में. द फर्स्ट फ्यू कॉन्सोनेंट्स दैट डेवलप आर ब, ट, फ, ह. दीज आर द साउंड्स जो सबसे पहले डेवलप होती हैं. और आप अगर गूगल करेंगे, आपको स्पीच साउंड्स गूगल करें, आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी विद एज. ये जो साउंड्स मैंने अभी बोली हैं ये 2 years पे डेवलप हो जाती हैं टिपिकली स्पीकिंग. 2 years की साउंड्स अलग होती हैं, 3 years के साउंड्स अलग होती हैं, 4 years की अलग होती हैं. देयर आर सम साउंड्स दैट आर सपोज टू डेवलप एट अराउंड 5 or 6 years ऑफ एज. उससे पहले वो साउंड्स नहीं आती. एंड सम ऑफ द हार्डेस्ट वंस आर साउंड्स लाइक दे कम रियली लेट. सो स्टार्ट विद द साउंड्स जो आप देख सकते हैं चार्ट पे, एंड दीज आर द वंस जो मैंने आपको भी बता भी दी हैं. दीज आर द वंस जो सबसे पहले डेवलप होती हैं. सो आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा अगर नहीं भी बोल रहा या अगर उसकी स्पीच डिले है तो सबसे पहले मामा या बाबा सीखता है बोलना, या न, एन की साउंड इज़ ऑल्सो अ साउंड जो बहुत जल्दी डेवलप होती है. सो बच्चे सबसे पहले पानी
या खाना को आना बोलेंगे, बिकॉज ये वो साउंड्स हैं जो ब्रेन की डेवलपमेंट में ही जल्दी पहले ये साउंड्स आती हैं. सो इनसे रिलेटेड जितने वर्ड्स आप सोच सकते हैं जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारे वर्ड्स आप एक लिस्ट बनाएं एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. एंड एवरी टाइम बच्चे को पानी चाहिए, यू से ओ पानी, ठीक है, एंड देन दे विल बी encouraged to speak that, but it may take time as well. So repeat it hundreds and hundreds of times and form these words with the sounds जो बच्चे की already हैं, तो उससे आपको ज़्यादा chance मिलेगा. You'll increase the chances of them actually verbalizing what you're saying. And it's important कि जो भी चीज़ आप बता रहे हैं उसको बच्चे associate करें कि ये किस चीज़ की sound है. So let's say अगर पानी है तो पानी के साथ करें. और ऑटिस्टिक बच्चों में it's even more helpful because अगर आप visual साथ देंगे तो they'll be able to associate that sound with that word. Another really good technique is to keep your finger on your chin. ये भी बहुत effective होता है. इससे भी बच्चे बहुत जल्दी आपके मुंह की तरफ नोटिस करते हैं एंड दे ट्राई टू माउथ द साउंड इवन इफ दे डोंट से इट आउट लाउड फर्स्ट. सो अगर वो माउथ भी कर रहे हैं आवाज़ को, तो दैट इन इट सेल्फ इज़ प्रोग्रेस. एक और चीज़ जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और जो कुछ पेरेंट्स ने मुझे भेजे हुए थे, वो ये था कि हमारे कल्चर में बच्चे मल्टीलिंगुअल होते हैं. सो वो उर्दू भी बोल रहे होते हैं, वो इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं, कुछ घरों में वो पंजाबी भी बोल रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द के जितने भी एडल्ट्स हैं. और पेरेंट्स आर कन्फ्यूज्ड कि लैंग्वेज इस तरह डेवलप होगी कि नहीं. सो फन फैक्ट, टिपिकली डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो इवन इतना छोटा बच्चा जो 6 months का भी होता है वो अपनी मदर टंग के क्यूज पकड़ लेता है. So even if they're not saying it, but you will notice that babies look really closely to what the adults are saying. और अगर वो नहीं भी देखते तो आप नोटिस करेंगे कि इवन बड़े होके भी बच्चे जिनका स्पीच डिले भी होता है समटाइम्स वो बहुत नोटिस कर रहे होते हैं. सो आप मल्टीलिंगुअल चीज़ें सिखा सकते हैं. देयर इज़ नो हार्म इन इट. दैट इज़ माई ओपिनियन. कुछ लोग कहते हैं कि एक ही लैंग्वेज सिखाएं, बट द ओनली थिंग आई वुड से इज़ कि अगर आपके घर में मल्टीलिंगुअल तरीके से बात हो रही है, सो अगर आपके घर में उर्दू भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, अगर आपके घर में सब लोग एप्पल को एप्पल बोल रहे हैं तो आप बच्चे को एप्पल ही सिखाएं. कभी एप्पल और कभी सेब ना बोलें, बट आप उनको दोनों लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं. एंड चिल्ड्रन आर रेजिलियंट एंड रिसर्च शोज़ के वो सीख लेते हैं, वो सीख भी लेते हैं और वो रिपीट भी करते हैं. सो देयर इज़ नो हार्म इन दैट. देयर इज़ नो इशू इन टीचिंग 2 languages एट द सेम टाइम. और रिसर्च में भी इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं किया हुआ कि बच्चे जो मल्टीलिंगुअल हैं वो नहीं सीख पाते, उनको प्रॉब्लम होती है. एज लॉन्ग एज अगैन आप कंसिस्टेंट हैं और कभी आप कभी आप केला बोल रहे हैं, कभी आप बनाना बोल रहे हैं, ये नहीं करना. एक ही चीज़ बोल रहे हैं जो भी आप बोल रहे हैं. एंड अगेन इट विल हेल्प अगर आप वही साउंड्स वाला वर्ड बोलें जो बच्चे की ऑलरेडी डेवलप्ड है या जो आपको पता है कि बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, वो वाली यूज़ करें. अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आपका बच्चा बैबल कर लेता है, थोड़ी सी वर्ड्स बोलना शुरू हो गया और उसको कुछ ना कुछ वन वर्ड में अपनी चीज़ मांगनी आ गई है. सो इन दैट केस आप क्या करेंगे कि अब आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम एक सर्टेन पॉइंट तक आ गए हैं बट हम इससे आगे नहीं जा रहे. सो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप यू विल एक्सपैंड. सो लेट्स से बच्चे को चॉकलेट चाहिए और वो आपके पास आके चॉकलेट दे रहा है और वो किसी तरह से आपको कम्युनिकेट भी करता है कि ओ चॉकलेट और समथिंग लाइक दैट. what you do is you expand on that. So assuming आप receptive language में vocabulary कर रहे थे, right? So obviously आप बच्चे को action verb सिखा रहे हैं. So what you will do is you will say, oh, eating chocolate. ठीक है? So आपने one word के साथ एक और word दे दिया, but you don't expect them to say it yet. आप अभी सिर्फ बताएंगे कि oh, eating chocolate. और फिर आप उनको चॉकलेट दे देंगे अगर वो one word पे हैं अभी तो. ठीक है? एंड वॉट यू विल डू इज़ आहिस्ता करके 1 word से इसी तरह 2 words पे जाते जाएं. बट इनिशियली सिर्फ आप बोलें. डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपको रिस्पॉन्स दें या वो आपको कुछ कहें. जस्ट कीप डूइंग इट, कीप सेइंग इट एंड देन आफ्टर अ वाइल यू विल सी कि बच्चे कंबाइन करना शुरू हो जाते हैं वर्ड्स. बट इसमें एक जनरल रूल ये है कि अगर आपका बच्चा अभी 50 words नहीं बोल रहा
एंड हैंस वाई आई एम सेइंग कि लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक क्लियर पिक्चर देगा. और समटाइम्स ये होता है कि आपको लग रहा होता है बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, बट जब वंस मैंने पेरेंट्स के साथ बैठ के लिस्ट बनाई हुई है एंड दे वुड से कि ओ मेरा बच्चा कुछ नहीं बोलता, बट देन व्हेन वी डू इट देयर आर सो मेनी साउंड्स दैट दे आर वर्बलाइजिंग, जो पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते. तो वो आपके लिए भी बहुत मोटिवेटिंग और अपलिफ्टिंग होगा टू नो कि वो डिफरेंट साउंड्स हैं जो बच्चा बोल रहा है. सो कंबाइंड वर्ड्स करने के लिए एक जनरल रूल ये होता है कि बच्चा एक ही वर्ड पे रहेगा जब तक कि उसके एटलीस्ट 50 वर्ड्स नहीं हैं जो वो बोल रहा है. अगर आपका बच्चा 50 वर्ड्स बोल रहा है और उससे आगे नहीं जा रहा, तो फिर आप वर्ड्स कंबाइन करने में और एक्सपैंड करने में वोकैबुलरी में जा सकते हैं. दैट्स जस्ट अ जनरल थिंग दैट और लाइक अ जनरल रूल दैट वी फॉलो. आपके बच्चे के साथ डिफरेंट भी हो सकता है, बट ट्राई कि आप पहले 50 वर्ड्स तक जाएं जो बच्चा बोल रहा है, और फिर उससे पहले फिर उसके बाद आप कंबाइन करने पे आएंगे वर्ड्स या फ्रेजेस पे जाएंगे आप. एंड ऑब्वियसली वंस यू गो इनटू फ्रेजेस, वंस यू गो इनटू 2 वर्ड फ्रेजेस, लेट्स से अगर बच्चा बोल रहा है कि ओ ईट एप्पल और ईट व्हाटएवर और रीड बुक, तो फिर आप यू कैन एक्सपैंड फर्दर ऑन दैट, एंड दैट इज़ अनदर होल न्यू डायमेंशन कि जिसमें आप वर्ड्स कंबाइन करके फ्रेजेस सिखाते हैं, फिर आप सेंटेंसेस बनाना सिखाते हैं. इसके लिए एक बहुत अच्छी रिसोर्स कलरफुल सेमेंटिक्स भी है जो बहुत अच्छी और पॉपुलर है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज दैट, इन विच यू कलर कोड every part of the sentence and then you teach children through color coding. अगर आप में से किसी को भी इन रिसोर्सेज के लिए कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन ask me or you can message us or you can even just google it, आपको मिल जाएगा. So you do all of that, right, and then you keep expanding. उसके ऊपर ही 2 वर्ड्स से 3 वर्ड्स पे जाएं, 3 वर्ड्स से 4 वर्ड्स पे जाएं, एंड मेक श्योर कि जब आप ये ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम वन टू द अदर, तो उस टाइम पर आप रिसेप्टिव लैंग्वेज और इमिटेशन स्किल्स और प्ले और इन चीज़ों पे काम करना छोड़ नहीं रहे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारे एरियाज़ को इंटीग्रेट करके इकट्ठे यूज़ करें. खाली स्पीच के ऊपर काम करने से आपको हेल्प नहीं होगी. अगर आप वोकैबुलरी डेवलप नहीं करें तो आपके 50 वर्ड्स नहीं आएंगे. अगर आप इमिटेशन नहीं करे तो बच्चा आपकी साउंड इमिटेट नहीं करेगा. सो कीप डूइंग दैट, कीप वर्किंग. इट्स अ स्लो प्रोसेस बट समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट इट्स वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो. नाउ अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू एड्रेस वाज, बहुत सारे बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं उनके साथ ये होता है कि उनके वर्ड्स ही नहीं आ रहे होते. नो मैटर आप जितना मर्जी इमिटेशन पे काम कर लो, आप जितना मर्जी दूसरे एरियाज़ पे काम करो, आपको टाइम लग रहा होता है. और उस प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चे बड़े होते जाते हैं. दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, दे वॉन्ट टू टेल यू थिंग्स दैट दे आर फीलिंग, दे वॉन्ट टू टेल यू अबाउट वॉट दे वॉन्ट, दे आर नॉट एबल टू, और आप समझ नहीं पा रहे होते कि वो क्या चाहते हैं. और फिर बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के बहुत सारे सेंसरी इशूज़ भी होते हैं, वो भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. सो दिस थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन वाज कि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न होते हैं कि अगर आप किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या आप कहीं भी थेरेपी के लिए जाते हैं, एंड दे वुड रिकमेंड कि आप बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखाएं, या आप पेक स्टार्ट करें, या आप कोई भी ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेटिव डिवाइस के साथ काम शुरू करें, तो होता क्या है कि पेरेंट्स डर जाते हैं एंड दे थिंक कि ओ अच्छा अगर हम पेक्स शुरू कर लेंगे तो फिर हमारे बच्चे के वर्ड्स नहीं आएंगे. एंड आई रियली 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 वांटेड टू से दिस टुडे, ऐसा नहीं होता. रिसर्च डज नॉट प्रूव इट. ऐसा नहीं होता. इवन आप देखें बहुत सारे लोग जो 10 साल से 15 साल से हम जितने भी प्रोफेशनल्स काम करें, दे वुड टेल यू दैट दैट डजंट हैपन. पेक्स or any kind of other alternative communication that you find is actually going to reduce your child's frustration. So अगर आपका बच्चा आपको बता नहीं सक रहा कि उसको पानी चाहिए, या उसके पेट में दर्द है, या उसने बाथरूम यूज़ करना है, या ये कि वो आज बहुत अपसेट है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो उनको और फ्रस्ट्रेट करेगा. उनके सेंसरी इशूज़ और एग्रीवेट हो सकते हैं. दे कैन बी मल्टीपल थिंग्स दैट कैन हैपन. इट्स ऑलवेज गुड to have some kind of communication going, because we all know autistic बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं और विजुअल चीज़ों से अच्छा सीखते हैं. और पेक्स और इस तरह के सारे सिस्टम्स, इवन साइन लैंग्वेज यूजेज अ लॉट ऑफ विजुअल स्टिमुलस. सो होता क्या है कि बच्चे सीख लेते हैं कि ओ ओके, सो पानी अगर कोई बोल रहा है उसका मतलब ये है,
और अगर मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ सामने पड़ी है, आई लाइक इट, इट्स कॉल्ड अ बुक. सो वो एसोसिएशन बनानी आसान हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट विजुअल स्टिमुलस, और उसकी वजह से बच्चे बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं. सो डू नॉट हेजिटेट टू स्टार्ट अ सिस्टम लाइक दैट. इट इज़ टीडियस, येस, बट इट विल रिड्यूस योर चाइल्ड्स फ्रस्ट्रेशन. सो पेक्स और साइन लैंग्वेज और एनी अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेटिव डिवाइस जो आपका थेरेपिस्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उससे डरे नहीं, वो आपको हेल्प ही करेगा और वो बच्चों के लिए भी ज़रा फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करता है. एंड दैट्स okay. So mostly there was these kind of things that I wanted to mention, and just this general overview that I wanted to give of how speech and language development can look like. I think something is going wrong with my camera, and also I can't even see if the connection is running smoothly. Okay, I will just need a minute, sorry. Okay, so I can't really see any comments right now, but अगर आप में से किसी के कोई questions हैं and you want to ask something about this, I didn't want to keep it very long. I didn't want कि मैं सिर्फ specific queries ही answer करूँ, because हर बच्चा different होता है, हर बच्चे की age, हर बच्चे का capacity, potential, where they are right now, उन्होंने कितनी देर से therapy ली है, it's very different. So अगर आपके पास कोई specific question है about your child, anything that you want to ask about, anything that you want to know specifically, अगर आप बच्चों के साथ घर पे काम कर रहे हैं, since आजकल कोविड सिचुएशन है, एंड अगर आप लोग घर पे काम कर रहे हैं एंड यू फील लाइक कि आपको पता नहीं है कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए और यू आर नॉट इन टच, प्लीज़ गेट इन टच विद योर थेरेपिस्ट. दे आर हियर टू हेल्प एंड दे विल हेल्प यू. और उनसे पूछें कि आप नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं. एंड आई वांटेड कि ये ओवरव्यू मैं थोड़ा सा दे दूँ, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू सम आइडिया of what you can do next with your child, right? So I'm hoping that this was helpful. I know it was very short and I know it was very rushed. Speech and language development is not something that we can cover in half an hour or something like that. It has numerous areas in it. उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे milestones होते हैं. There are too many things happening. बट आई ट्राइड कि मैं उसको जितना कंसाइज कर सकूँ और जितना कंपाइल कर सकूँ उतना करके आई जस्ट एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स टू यूज़, ताकि आपको घर पे आजकल काम करने में थोड़ी हेल्प हो और आपको पता हो कि आपने कैसे अपने बच्चे के पास रीच करना है. सो आई एम होपिंग दैट दिस वॉज हेल्पफुल एंड आई एम होपिंग दैट द टेक अवे दैट यू टुक फ्रॉम दिस डिस्कशन वॉज समथिंग दैट will aid your process of developing speech and language in your child. Remember to integrate all areas. Remember कि आप एक standalone area पे काम करके improvement नहीं लेके आ सकते. It has to be all these things combined together. And if you have any questions, ask your speech therapist. अपने area में किसी को ढूंढें और उनसे बात करें. और अगर आप already therapy पे जा रहे हैं तो don't be afraid to ask questions and ask your therapist why they're doing something that they're doing with the child. And that's it. And if you have any questions तो फिर मैं नीचे comments में answer कर दूँगी. Have a nice day and have a nice Eid. And please pray for our country and for the world right now. Thank you so much for your time.